Welcome dear students, and today we are going to understand our first lecture on base SAS programming. आज के लेक्चर में हम लोग SAS प्रोग्रामिंग का बेसिक इंटरफेस देखेंगे और उस पे स्मॉल प्रोग्राम कैसे लिखते हैं ये हम लोग सीखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। Hello students, myself Professor Mahesh Mali. Welcome to my educational channel Data Guru Simplified Data Science. And I am here to make your learning simple and interesting. Subscribe करना ना भूलें Data Guru Simplified Data Science. तो चलो शुरुआत करते हैं। First of all, what is data science? Now, do remember data science is a very big field. Okay, it is not only database, it is not only analytics, or it is not only the predictions, but altogether it's a very huge field which handles huge amount of data in efficient way. It involves multiple technologies, algorithms, concepts together. And the main target of this data science is to uncover the information for the business growth. There are many fields in which data science is effectively used, like data engineering for scientific methods, mathematics, statistics, advanced computing, visualization, and lot much. Data science is mainly takes an help of three fields. One is mathematics, programming, and statistics for future analytics, for future predictions. Okay, along with database knowledge, you must have knowledge of these three fields if you want to excel in this field. So data science actual में क्या कौन से skill का set है? तो that is three sets. First is database architecture. Database architecture में क्या होता है? यहाँ पे डेटा सेव किया जाता है, जैसे कि आपका डेटाबेस। तो बेस सास इज एक्टिंग इन दिस पर्टिकुलर लेयर। Hadoop, Python, these are also comes in this layer, जहाँ पे डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और डेटा के बेसिक ऑपरेशंस किए जाते हैं। इसके आगे जाके इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट डेटा इन बेटर वे वी यूज एनालिटिक्स, विजुअल एनालिटिक्स, Tableau and such softwares which help us to portray data in an excellent manner. मतलब जस्ट वो फोटो देखने से अपने को पूरे डेटा का नॉलेज आ जाए। That is data analytics. और आगे होता है मशीन लर्निंग, जिससे हम लोग प्रिडिक्शंस करते हैं। तब तक का डेटा तो मैंने देख लिया, what will be the future? That is done by the next part of data science, which is machine learning, and also involves artificial intelligence. Now, why we are learning data science with SAS? As I told you, it is one of the best commercial tool for the data science and equally expensive too. SAS is there in market from very old time in 1980s. In 1980s, SAS stands for Statistical Analysis Software. But now it has covered almost all the domains of data management, visual analytics, predictive analytics, prescriptive analytics, then business intelligence, and many more. So now SAS ka full form is not limited to statistical analysis software, but it is much more. So now it is simply a SAS institute. SAS takes an extensive programming approach for data transformation, transferring data from one place to another place. Data science, when it comes to SAS, it has three different edges, as I explained you just now. Information management, जहाँ पे डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा, एनालिटिक्स, जहाँ पे डेटा बेटर वे में रिप्रेजेंट किया जाएगा,
और बिजनेस इंटेलिजेंस, जिससे प्रिडिक्शंस किए जाएंगे। ऑल टुगेदर इट गिव्स हाई परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, हैंडलिंग ह्यूज डेटा, हैंडलिंग स्ट्रीमिंग डेटा at less time, which involves accessing data effectively from heterogeneous sources, managing data effectively to avoid data problems, present data in an excellent way so that with minimum diagrams we can explain much more data, analyzing data to uncover hidden facts. So that is very important part of SAS, why we use it. Now, why we use base programming? As I told you, base is a name of language which is 4th generation, highly flexible and extensible language. It's a programming language introduced by SAS for all their packages. It is useful in data analysis. And to know you, it is having international certification offered by SAS Institute, and this is the first level of certification, that is SAS certification. Base SAS has a very rich library of encapsulated programming procedures. Once you achieve SAS certification, you will get this type of blue colored badge. It's a digital badge which you can showcase on your resume also. Now, after performing SAS course, do we have job opportunities? So I'll say yes. There are multiple SAS partners exist in India. Few of them are as given. But the latest example I can give of Corona pandemic. Almost all the states are using SAS Visual Analytics ka dashboard for representing daily Corona cases. So that is one of the most useful software for commercial use. Now, coming on to the ground, how base SAS program will run. So the first interface that is used for running SAS program is called as SAS On Demand Studio. SAS On Demand Studio, जो कि वेब बेस्ड टूल है। आपको सिर्फ लॉगिन करना है और उसमें जाके कोड लिखना है। तो इट इज वेरी सिंपल एडिशन। नेक्स्ट इज एंटरप्राइज गाइड। SAS ऑन डिमांड एंटरप्राइज गाइड भी होता है, जो कि फ्री टूल है, आपके मशीन पे इंस्टॉल करते हो, एंड इट कम्युनिकेट्स विद सर्वर ओनली व्हेन यू आर कंपाइलिंग द प्रोग्राम। तो ये टूल भी बहुत बढ़िया रहेगा। अपने फर्दर ट्यूटोरियल में हम लोग यही टूल यूज करेंगे। विंडोइंग एनवायरनमेंट यूज्ड बाय द SAS डेवलपर्स, जो SAS के खुद के डेवलपर्स हैं, as per them they are using SAS windowing environment. Now, base SAS programming interface. This is the programming interface. As I explained you, there is first tab of code, जहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे, रन करेंगे। अगर कोड सक्सेसफुली रन होगा तो अपने को मिलेगा लॉग, मतलब उसने कैसे कोड रन किया, उसका पूरा का पूरा स्टोरी और आउटपुट। और अगर आपका कोड फेल हो जाएगा, रन नहीं होगा, तो आपको मिलेगा सिर्फ लॉग विद द रिकॉर्ड। तो आप वहां पे लोकेट कर सकते हो कि क्या एरर हुआ, यू कैन रेक्टिफाई द एरर एंड यू कैन री रन द प्रोग्राम। एकदम सिंपल, ठीक है। तो जनरली लोगों को आदत होती है कि एडिटर में प्रोग्राम लिखो, रन करो, आउटपुट देखो, पर यहाँ पे यू हैव टू मेक अ प्रैक्टिस to go through log file, which will give you lot of knowledge. तो चलो सैंपल बेस कोड देखेंगे, बिकॉज अभी अपने को देखना है कि सर एग्जैक्टली कोड कैसे लिखते हैं। लॉट ऑफ थियरी वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। तो सबसे पहले टू क्रिएट SAS डेटा सेट वी हैव यूज्ड अ स्टेप जिसका नाम है डेटा स्टेप। देखो, डेटा स्टेप चालू होता है with keyword called as data. चालू होता है with a keyword called as data. ठीक है, तो ये डेटा कीवर्ड से हम लोग ये स्टेप चालू करेंगे अपना। ठीक है, डेटा एंड
डेटा स्टूडेंट का मतलब है नया डेटा सेट क्रिएट किया जिसका नाम है स्टूडेंट। हर लाइन के एंड में आपको सेमीकोलन डालना है जो आपके कंपाइलर को बताएगा कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग का लाइन खत्म हो गया है। ओके, हर लाइन के एंड में एक कोलन है। ये जो प्रोग्राम है इसे बोलते हैं डेटा स्टेप, और हर जो लाइन है उसे बोलते हैं डेटा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बोलेंगे हम लोग इसे, स्टेटमेंट। इसमें हमने पहला कॉलम क्रिएट किया जिसका नाम है नेम मयूर, पहला रो भी क्रिएट हो गया। दूसरा कॉलम क्रिएट हुआ sub1 67, तीसरा कॉलम sub2 88, sub3 91। अभी आप में से जो एक्सपर्ट डेवलपर्स है वो सोचेंगे सर यहाँ पे हमने टेबल क्रिएट जरूर किया लेकिन किसी भी कॉलम का डेटा टाइप कैसे पता चलेगा? तो SAS is intelligent enough to recognize डेटा टाइप। उसको डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सेंस करेगा कि कौन सा डेटा टाइप यूज करना चाहिए और इंटेलिजेंटली यूज करेगा। जैसे कि नेम, ये कॉलम जो क्रिएट किया है बाय डिफॉल्ट वो उसे बनाएगा टेक्सचुअल कॉलम, और जो sub1 क्रिएट किया है बाय डिफॉल्ट वो उसे बनाएगा न्यूमेरिक कॉलम। अभी समझो बेटा, नेम कॉलम जब क्रिएट किया जाता है ना तो इसका जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू वो देखो 5 है, मयूर MAYUR 5 लेटर, मतलब इसका साइज बनेगा डिफॉल्ट 5 और टाइप बनेगा स्ट्रिंग और नाम मिलेगा नेम NAME नेम। कॉलम के 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, नेम, दूसरा उसका टाइप और दूसरा उसका लेंथ। यहाँ पे ड्रॉबैक ये हो रहा है ना कि लेंथ ये 5 ले रहा है, तो अगर आपने बाद में कभी ऐसा नेम डाला सेकेंड रो में जिसका नंबर ऑफ लेटर्स मोर देन 5, देन इट विल ट्रंकेट दैट पर्टिकुलर लेंथ। इसका डिफॉल्ट साइज होता है जो आपके पहले असाइनमेंट का साइज है। सब्जेक्ट 1 जो न्यूमेरिक कॉलम है उसका डिफॉल्ट साइज क्या होता है? तो इसका डिफॉल्ट साइज होता है 8 बाइट्स। न्यूमेरिक का डिफॉल्ट साइज 8 बाइट्स है और स्ट्रिंग का डिफॉल्ट फर्स्ट असाइनमेंट है, जो पहला नाम आप असाइन करोगे। 8 बाइट में कितने डिजिट्स आते हैं? तो 15 से 16 डिजिट आते हैं, अराउंड 15 to 16 डिजिट आते हैं बाय डिफॉल्ट। तो न्यूमेरिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, स्ट्रिंग में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, इसके बाद मैं सेकेंड कोड आपको सिखाऊंगा। यही टेबल जो आपने क्रिएट किया ना, मैं उसमें एक कॉलम ऐड करने जा रहा हूं जिसका नाम है एवरेज मार्क्स। क्या किया देखो, डेटा स्टूडेंट, सेट स्टूडेंट, देखो दोनों नाम सेम है, मतलब इनपुट टेबल भी स्टूडेंट है और आउटपुट टेबल भी स्टूडेंट है। अगर आप चाहो तो आप नया टेबल बना सकते हो new_student, लेकिन अगर मुझे उसी पे ओवरराइट करना है तो आपका इनपुट टेबल जो आप सेट में लिखते हो वो भी सेम है और आउटपुट टेबल जो डेटा में लिखते हो वो भी सेम है। एवरेज मार्क्स नाम का नया कॉलम बना लिया, उसका डेटा टाइप उसने sub1 sub2 से मोटिवेट होते हुए न्यूमेरिक का लिया। न्यूमेरिक का डिफॉल्ट साइज लिया 8 बाइट्स विच इज इक्वल टू 15 to 16 डिजिट्स। फिर ये कैलकुलेशन करके उसने पहला वैल्यू डाल दिया और आपका प्रोग्राम एंड हो गया। तो यहाँ पे 2 कोड में मैंने क्या किया, पहले तो मैंने एक टेबल बनाया, उसमें एक रो डाला। दूसरे कोड में मैंने उसी कोड को चेंज करते हुए उस टेबल में एक एक्स्ट्रा कॉलम डाल दिया और उसका कैलकुलेशन भी कर दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। अभी आप बोलोगे मुझे कि सर ये जो टेबल मैंने क्रिएट कर लिया, हाउ टू चेक वेदर इट इज क्रिएटेड? तो ये चेक करने के लिए अपने पास मेथड है जिसका नाम है proc print। proc print का काम होता है वो पर्टिकुलर डेटा को प्रिंट करना। proc print डेटा इक्वल टू स्टूडेंट, मतलब टेबल का नाम क्या है बेटा? स्टूडेंट। डेटा इक्वल टू स्टूडेंट, मतलब कौन सा डेटा प्रिंट करना है वो लिखा, एंड, बस। और ये आपको आउटपुट में पूरा का पूरा टेबल प्रिंट करके दे देगा। ओके, नाउ अभी हम लोग आएंगे SAS टूल पे in our next session and we will try to run this particular code onto the SAS tool। ठीक है, तो आज के लिए आपका असाइनमेंट है कि आप ऐसा ही कोई एक टेबल विथ हेल्प ऑफ दिस 2 कोड्स, ऐसा ही एक कोई भी टेबल जो आपको अच्छा लगता है, डेटा, हॉस्पिटल, उसमें पहला नेम वगैरह वगैरह आप डाल सकते हो। कोई भी डेटा आप क्रिएट करोगे
उसमें एक दो कॉलम ऐड करके देखोगे और उसे प्रिंट करके मुझे इसका आउटपुट बताओगे और इसका स्क्रीनशॉट आप डालोगे हमारे कमेंट सेक्शन में, जिससे कि अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो हम लोग आपको एड्रेस कर पाए और अगर आपने कुछ अच्छा किया तो हम लोग आपको अप्रिशिएट कर पाए। तो आपका आज का असाइनमेंट होगा, आप ऐसा ही एक डेटा सेट बनाओगे और उसे प्रिंट करके दिखाओगे इनटू SAS स्टूडियो और SAS एंटरप्राइज गाइड। तो आज हमने देखा कंसेप्ट ऑफ डेटा साइंस, SAS फॉर डेटा साइंस, कोडिंग एनवायरनमेंट और एक सैंपल कोड। बट डोंट फॉरगेट कि हमने एक असाइनमेंट दिया है जिसमें हमने आपको बोला है कि आपको एक SAS का सैंपल कोड देखना है, लिखना है और वो कोड आपको हमें भेजना है कमेंट सेक्शन में, जो कि हम लोग वेरीफाई करेंगे और आपको अच्छे कोडिंग के लिए गाइड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू पुट इन कमेंट सेक्शन एंड मैं उसे 1 या 2 दिन में आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर joining our session. Okay, so thank you very much for attending the session and we will meet with such another programming video in details from next week onwards. Thank you very much. तो ऐसे ही लाइक करते रहे सारे वीडियोस को और विजिट करें हमारा चैनल डेटा गुरु सिंप्लीफाइड डेटा साइंस, जो आपके लिए हिंदी में डेटा साइंस का कंप्लीट नॉलेज देगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।